फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स, क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स, सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट। Hello and welcome to Cricket Next, and here we are with the IPL 2024 RCB versus Chennai Super Kings, और Chennai Super Kings will be led by ऋतुराज गायकवाड़। एक नया सीजन, एक नया आगाज होने जा रहा है और CSK के लिए भी एक बहुत नई बिगनिंग है ये। I am here with Jamie Alter, Taos SB, and will be shortly joined by Dharmendra and Keshrivas Rao. Jamie, what do you make of this? We haven't had a chat about ऋतुराज गायकवाड़ taking the reins from MS धोनी, और ये जो फैफ भी हैं जो RCB लीड करेंगे उनका भी एक CSK कनेक्शन है, तो ये this is the match of connections, and of course we know विराट कोहली कितने क्लोज हैं MS से. So what do you make of this game? And firstly the ऋतुराज गायकवाड़ taking up the captaincy. Yeah, it's quite something. I mean, I'm sure. Yeah, can you hear me? I think there's a network issue where I am. I don't know. No, I can hear you. The thing with Dhoni is like he always times these announcements like at the last minute, right? तो कल मैं यहाँ पे बैठा था जहाँ पे मैं हूँ and the phone buzzed. मैंने कहा धोनी ने IPL के 24 घंटे पहले रिटायरमेंट ले लिया, but that is what he does. And it was so funny. हम लोग जब 2-3 दिन पहले हम जुड़े थे and the question came up, कि who could possibly be the next leader. No one thought कि यार 2 दिन बाद हम वो बात करेंगे. But I remember I said, oh, it should be ऋतुराज गायकवाड़. अब यार 48 घंटे बाद that guy he's just coming back off an injury. He's got maybe a T20 World Cup spot is like running through his head, and now he's got this massive job. मैं 2 साल पहले से compare. I guess there's some network issue with Jamie, but Taos bhai, a big game. He was not able to see it through, so let's hope ऐसा ना हो. बाकी तो it's the Jamie, can you repeat? I think there's a net issue. Can you hear me? Yeah, we can hear you now, but can you repeat what you were saying? Hello. Yeah, Jamie. Yes, there's some network issue with Jamie. Taos bhai, I'll come to you. As I said, new beginnings, new season, new captain for CSK, Faf having a CSK connection as well. What do you make of this game? How big is this game for ऋतुराज गायकवाड़, in front of that crowd? No, for starters, for me, it's very, very tempting having a CSK take on Royal Challengers. Obviously, the reason is CSK having a legacy of 5 titles. Mahendra Singh Dhoni now like fading away as a captain. I mean, he's given his reins to ऋतुराज गायकवाड़, the youngster. The people were बहुत सारे लोग स्पेकुलेट तो कर रहे थे कि भाई ऋतुराज हो सकता है, और इशारे आने शुरू हो गए थे. रविंद्र जडेजा को जो मिली थी कैप्टेंसी, दैट वाज लाइक गैप में जो श्रीनी ने बताया, दैट वाज मोर इंटरेस्ट. देन यू हैव रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर, विराट कोहली and an unsuccessful fight, and then on top of that, recently the good news that they have won, their girls have won the WPL Women's Premier League. तो इससे बड़ा एक स्पाइस्ड अप एनकाउंटर, और दोनों साउथ की आर्क राइवलरीज हैं, RCB और चेन्नई सुपर किंग्स, कर्नाटका तमिलनाडु रणजी ट्रॉफी में या डोमेस्टिक क्रिकेट में. तो एक मजेदार कॉन्टेस्ट होता है, और दोनों की जबरदस्त टीम है. आई मीन ऑन पेपर एटलीस्ट चेन्नई सुपर किंग्स लुक्ड मोर बैलेंस, बट यहाँ पर RCB की खामियां हैं, बट दे आर हंग्रियर एज एवर. लाइक हंग्री तो रहे, और उनको 88 नहीं हुआ उनका हंगर, बट दे विल कंटिन्यू टू बी हंग्री एज एवर. बट यहाँ पर CSK के लिए डिफेंडिंग चैंपियंस, रेनिंग टाइटल डिफेंड करना वो ज्यादा इंटरेस्टिंग बात रहेगी, क्योंकि क्या ऋतुराज गायकवाड़ अपने बीइंग अ न्यू कैप्टन, being coming up with new ideas, can he defend the title, can he fill in those big shoes? वो एक सवाल रहेगा, वो एक मजा आएगा देखने ये सीजन कैसा. मगर धोनी की छाया हमेशा रहेगी यार. धोनी will be everywhere यार. You won't see ऋतुराज गायकवाड़ taking all the decisions alone. तो वहां पर धोनी का इम्पैक्ट तो रहने वाला है, मुझे तो लगता है. Yeah, Jamie, you were saying something. Yeah, sorry, I was just saying that. I mean, basically, I was leading into a
Taus bhai just said कि Hmm. जब तक धोनी as a player रिटायर नहीं होते तो he'll be taking majority of the calls, you know, because यार देखो जो भी हो, I mean, हो सके कि ऋतुराज गायकवाड़ से कोई काबिल लीडर हो, वो क्या करेगा, वो देखेगा एक बार माही भाई ये करूं ये ना करूं, so it's just going to be there and there's nothing wrong with that. I mean, it is MS Dhoni we're talking about ना, Yeah. और 5 बार टाइटल्स, यू नो, हो सके एक दो और टाइटल्स हो अगर वो 2 साल सीएसके बंद नहीं होते, यू नो, बट Hmm. so it's good that you know he has. और देखो हमें या वाइडर पब्लिक को कल इन्होंने बताया गया, but I'm sure they would have known like before, you know, because it's brand Dhoni. Dhoni could not have said it 5 days ago because the brand would have dipped. So they waited until the last possible minute, but I mean, an extremely successful franchise. Ruturaj Gaikwad, I think mega auction ke baad bhi CSK are going to retain him because I think they're going to build the team around him. So Yeah. it's a fantastic time. देखो मेरे ख्याल से 2020 के बाद से गायकवाड़ इस टीम से जुड़े हैं. मुझे याद है इनकी शुरुआत खराब थी. He batted in the middle order. He got 2 ducks. देन काफी समय तक उनको बाहर किया गया था. 20 की बात कर रहा हूँ. फिर जब टीम की हालत खराब हो गई और टीम प्लेऑफ से बाहर हो गए, तो पिछले 3-4 मैच के लिए उससे ओपनिंग करवाया एंड he got 50s. He averaged over 50 in that overall bad season. फिर 21 में the guy got 635 runs. So it's a very good successful bet I think that they're going with. But yeah, look, the actual test मेरे हिसाब से the actual test for Gaikwad will be जब धोनी फील्ड पे ना हो, जब वो जो भी हो mentor लेकिन on the लेकिन field, he's still there. Okay, okay. I'll take this question to Dharmen. Dharmen, first of all, welcome to the live session. Secondly, जब धोनी नहीं होंगे तो क्या ऋतुराज गायकवाड़ थोड़ा कम प्रेशर में नहीं होंगे कि यार ठीक है, अभी मेरे पास वो होता ना, एक मॉनिटर नहीं है या क्लास टीचर सामने नहीं है, तो अभी मैं थोड़ा रिलैक्स करके पेपर कर सकता हूँ. क्या वो सिचुएशन नहीं होगा? नहीं सौम्या, आप तो मुझे लगता है कि अभी ऋतुराज अभी धोनी के होने से ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे. देखिए उनके लिए एक बिगिनिंग स्टार्ट अभी वो स्टार्ट कर रहे हैं, सो उनके ट्रेनिंग एक तरह से उनको ट्रेन किया जाएगा. ऐसा नहीं है कि अब ऋतुराज पहले मैच से ही इतने आपको एक्सपर्ट कैप्टन के तौर पे दिखेंगे. तो धोनी का रहना मुझे लगता है कि अगर वो फील्ड पे जितना भी मौजूद रहेंगे, अभी उनको अपने जो कैप्टनसी स्किल्स को मतलब उसको डेवलप करने में, उनको आगे उसको करने में उनको मदद मिलेगी उससे. तो धोनी का रहना उनके लिए अच्छा रहेगा अभी. हाँ, ओवर द टाइम जब वो धीरे धीरे अब जो कैप्टनसी रोल में अब जम जाएंगे, तो फिर डेफिनेटली ऑब्वियसली फिर वो रियल टेस्ट उनका तभी होगा जब धोनी फील्ड से बाहर बैठेंगे. Yeah. On that note, I'll also welcome Srini to the live session. Srini, we have talked about MS passing on the baton to Ruturaj Gaikwad, but how excited are you to see that youngster taking up that role, and he'll be finally there out for the toss? So how excited are you to watch him, and also this Very, encounter? I'm all for youngsters, given leadership, being given leadership roles. And I think as we move forward in a tournament like the IPL, I would want to see this becoming a trend, because see, as the game gets shorter, it becomes more and more a younger audience's game, Yeah. a younger cricketer's game, And T20, from a white ball perspective, is as young as it gets from, an age-related audience perspective. So from that standpoint, it's always a pleasure when you see youngsters being given those roles of responsibility. I mean, why not? Why today? I mean, Rohit was almost like 23 going on 24 when he was handed this responsibility at MI. He was this young guy, kind of who had proved himself in the format, and he had been given the responsibility. I said, why not? I mean, I think it's a very good decision on part of CSK, and clearly not a decision taken in a hurry. This raises a lot of question on the other front, where why did they give it to Jadeja? If this is what they had in mind. Those some questions obviously take their own time, getting answered. But that said, I think from whatever. I mean, this guy has been formidable. I have seen the way he has approached the innings for CSK. The confidence with which he has, he and Devin Conway together have given CSK the kind of stuff, even before Devin Conway actually, and
that temperament level this guy shows, uski wo aadat hoti hai, walk down that crease, and Hmm. kind of. But yeah, at that age, to get that going, and obviously he had his keepers backing. Obviously, MS, has a soft corner for this guy. See, MS is a very strong-minded guy. Okay, so Hmm. it with kind of people like MS, there's no gray. There's nothing like, okay, हाँ ठीक है आ जाए यार, मतलब adjust कर लेंगे. So it's with guys like MS, it's like you either with him or you're not with him. Okay, Hmm. so you either have his backing or you don't have his backing. And clearly Rutu is the kind of guy who has his backing. So Has his back. obviously he has seen something in Rutu, and obviously the CSK management saw something in Rutu. And Rutu is cool. I mean, as a cricketer, he's cool as with a guy with the right kind of attitude. And why not? Just the right age. I would see this one. Want to see this becoming a trend actually. Hmm. Youngsters being given such responsibilities. Yeah. That's what do you By the way, think? how old was Virat when he was given the RCB Virat was captaincy? also 20, 22. 22. He was There, 22. there you go. There you go. He was 22. Yeah. Yeah. That's what do you think? This is going to be a trend in the coming, not more than 2 years कि जहाँ पे सारे young लड़के would be the captaining the side और सब 27-28 साल के होंगे. 27-28 थोड़ा होल्ड हो जाता है क्रिकेट में, बट हाँ No, going into It is 27. important. Obviously, अगर ऋतुराज को अभी मिला तो he'll be around that age only. No? नहीं नहीं नहीं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सी अभी आप देखेंगे, आई मीन सीनियर करियर्स फेड हो रहे धीरे धीरे. यंगस्टर्स अभी आएंगे. आई मीन यू विल सी अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स कमिंग इन, और जो यंगस्टर्स हैं जो फिलहाल है वो धीरे धीरे एक्सपीरियंस होते जाएंगे. सो दैट इज वेयर यू सी ऋतुराज गायकवाड़ का सीजन कितना हुआ है, 2-3 season, which is good. Like he's given his captaincy at this age, and Yeah. he's still a youngster and learning. I mean, the best part about him that he's learned from Mahendra Singh Dhoni. He's been there, played with him. Obviously, जैसे श्रीनी भाई ने कल बोला कि ऐसे ही नहीं धोनी ने कैप्टनसी दे दिया होगा. He might have seen something special in Ruturaj Gaikwad that he's given him his reins to a youngster from a guy from Pune, Maharashtra. So you will see a lot of youngsters coming up. Obviously, आप देखेंगे करंट सिचुएशन में देखेंगे कितने यंगस्टर्स हैं यहाँ पर. शुभमन गिल ऑलरेडी ही इज स्टिल अ यंगस्टर डिस्पाइट प्लेइंग क्रिकेट अ लॉट ऑफ 4-5 साल इंटरनेशनल क्रिकेट को हो गए. ही स्टिल अ यंगस्टर, ही नॉट गॉट ओल्डर देन. बाकी ऋषभ पंत, वुड यू काउंट हिम एज अ यंगस्टर? ऑफ कोर्स. Just that he, like, उसको भी कितने साल हुए इंटरनेशनल क्रिकेट में, 4-5 साल, but then he's still a youngster. So the best part about this game, अब जितने भी देखोगे विराट, रोहित, ये सब धीरे धीरे फेड अवे हो गए हैं और होते जाएंगे. तो अभी आप कौन सीनियर देखेंगे आपको? तो आपको ये जो एक्सपीरियंस वाले हैं, जो सी एक्सपीरियंस काउंट, नंबर्स ऑफ एज क्या है आपका, आपकी मेच्योरिटी क्या लेवल है, वो काउंट करता है. अभी धोनी को भी 2007 में जब दिया था कप्तानी, आपके पास गौतम गंभीर थे, आपके पास युवराज सिंह थे, आपके पास सब बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ी थे. बट देन आपको धोनी 2004 ने जिसने डेब्यू किया था, 3 साल बाद उसको कैप्टनसी मिल गई थी, एंड देन ही शोड व्हाट एग्जैक्टली ही इज. तो यंगस्टर्स हो या मेच्योरिटी इंपॉर्टेंट है, एक्सपीरियंस इंपॉर्टेंट है, आप क्या सिचुएशन में रिएक्ट कैसे करते हो वो इंपॉर्टेंट है. और वो इमीडिएटली दिख जाता है, क्योंकि जो आपके सिलेक्ट करने वाले बैठे रहते हैं, जो टैलेंट स्काउट या सिलेक्टर रहते, चाहे इंडियन टीम हो चाहे, वो सब प्रोफेशनल्स है. दे आर एक्सपीरियंस लॉट, दे हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स. दे नो एग्जैक्टली कि कौन से घोड़ी पे बेट लगाना चाहिए. अब ऋतुराज पे लगाए, एंड you will see a lot of guys coming up in the future and some exciting talents I'm going to see. Yeah. We are चलिए ये तो CSK की बात हुई, but there's another man who is making his comeback to the competitive cricket after a good time. Jamie, Virat Kohli, excited to watch him. Absolutely. I mean, he's just phenomenal to watch. More so in the IPL, and he had that really bad season 2 years ago. But the way he came back last time, it looks like, यार ये तो 2016 वाला विराट कोहली वापस आ गया, which is fun to see. And you're right, it has been 3 months. He last played in early January, and here we are. So it's been a while. Again, like we discussed a couple days ago, सारे unlike every other team, हमारे सारे players जो T20 World Cup जाएंगे, वो सारे IPL खेलेंगे, right? And I think we saw this before in 21 when they were exhausted. They had a bad time at the T20 World Cup.
इसमें क्या है, इसमें पॉजिटिव है कि द पीपल हु हैव ऑलरेडी बीन टोल्ड और दे नो दे आर गोइंग, they still have to do things. Like Rohit Sharma knows कि वो captaincy करेंगे टीम के, but it's been 6-7 seasons since he had that big season, you know. So it's always fun to watch, especially, और देखो हर T20 World Cup एक IPL के बाद ही आता है, you know, मोटा मोटा. So someone like Virat Kohli, a lot of speculation, will he, won't he go to? So personally, you know where I stand in regards to RCB, तो मैं वहां जा नहीं रहा हूं. But for Indian cricket perspective, right? What is Virat Kohli going to do? This guy is the world champion batter. Okay, he doesn't have any title, but we know when I say world champion, he is the best of this era. But कहीं ना कहीं उनके दिमाग में रहेगा क्या मैं T20 वर्ल्ड कप जा रहा हूं. No, so how does he then use that? Because May 1st is the deadline. सारे प्लेयर्स जो जा रहे हैं लेकिन जिनके पास फॉर्म नहीं है, विराट कोहली, I'm not saying doesn't have form, but 3 months हो गए. So I'm very, very keen to see what he does. It could be, Soumya, it could be that we're looking at another crackerjack season, only because he might have an extra point to prove given the fact that the T20 World Cup's happening. और अगर ऐसा हो गया, तो then it'll be tremendous for, yes, Indian cricket, but then RCB fans might be in for something really special. Yeah, just digressing a bit, I also feel this is also a season for Rohit Sharma because he doesn't has the baggage and all. Captaincy nahi karna hai. He can be a free bird and just make score some runs. But Dharmendra, I will come to you for Virat Kohli, right? You know, coming back after a very long time. 3 months is a very long time. You know, क्या चल रहा होगा दिमाग में, और इतने बड़े प्लेयर हैं, क्या दिमाग में ये चीज चल रही होगी कि यार वर्ल्ड कप जाएंगे या नहीं जाएंगे, और ही विल बी in that moment कि boss, I just want to go and play the game I love. यार सौम्या, मुझे लगता नहीं है कि विराट कोहली जैसे प्लेयर के दिमाग में इस तरह का कुछ ऐसा होगा. देखिए, ठीक है, टीम का अनाउंसमेंट नहीं हुआ है और मुझे नहीं लगता कि ये आईपीएल विराट कोहली के फॉर्म को चेक किया जाएगा कि आईपीएल में कितना अच्छा करेंगे तो विराट जाएंगे. देखिए, विराट, मुझे लगता है कि अगर कितना भी इनका खराब फॉर्म रहेगा, लेकिन इतनी जिस तरह का उनकी बैटिंग हमने पिछले कुछ सालों में देखा है, आप ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बिल्कुल वो इतना खराब खेलेंगे. वो ठीक है, 3 महीने का ब्रेक था, वो अलग बात है, और देखिए उनकी फिटनेस को लेकर कोई सवाल नहीं. और जिस तरह से कप्तान रोहित शर्मा ने भी जो इंडिकेशन ही दिए हैं कि भाई विराट तो मतलब वर्ल्ड कप में रहेगा, फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि विराट कोहली के दिमाग में इस तरह का कोई कंफ्यूजन होगा. हाँ, मैं बल्कि ये समझता हूँ कि विराट एंजॉय करेंगे, क्योंकि 3 महीने के ब्रेक के बाद आ रहे हैं, तो वो क्रिकेट को एंजॉय करेंगे. देखिए, क्रिकेट क्या है ना, क्रिकेट के जिस तरह का हंगर उनके अंदर देखा गया है, ये बहुत रेयर ऐसा हुआ कि इतना लंबा ब्रेक उन्होंने ले लिया, टेस्ट मैच पूरा सीरीज नहीं खेल पाए. तो मुझे लगता है कि और हंगर उनके अंदर का वो आएगा इसमें, तो उनके लिए बड़ा अच्छा हो गया. वो फ्रेश होकर के आए हैं और यहाँ पर मुझे लगता है कि एक अच्छा क्रिकेट खेलेंगे. और वर्ल्ड कप, मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि विराट कोहली वर्ल्ड कप टीम में नहीं होंगे. ठीक है, इसको लेकर हम बहुत सारी चीज, इसको हम जब डिस्कशन करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई रोहित शर्मा, विराट कोहली और के राहुल को लेकर के हम बातें कर रहे हैं कि सीनियर प्लेयर को जाना चाहिए नहीं जाना, जिसपे डिबेट हो रहे हैं. मगर वो ऑलरेडी एक बीसीसीआई की तरफ से इंडिकेशन आ गया है, जब रोहित शर्मा आ गए हैं, विराट भी आएंगे, तो चीजें उस तरह से जाएंगे. तो विराट को लेकर मुझे कुछ नहीं लगता. लेकिन हाँ, विराट के लिए एक ऐसा है कि काफी सालों के बाद एक और इंटरेस्टिंग चीज आ रही थी. देखिए, धोनी कैप्टन नहीं होगा, धोनी एक फ्री, हम धोनी के बारे में बातें नहीं, धोनी कैप्टन की तो हमने बातें की हैं, लेकिन जिस तरह से धोनी के जो आ रहे हैं विजुअल्स आ रहे हैं, प्रैक्टिस के जो विजुअल्स आ रहे हैं, वो लंबे लंबे शॉट्स मार रहे हैं. वो मुझे लगता है कि धोनी इस बार काफी तैयारी के साथ आए हैं. धोनी है जब बैट्समैन हमें देखने को मिलेगा, कप्तान तो हमने इतने सालों से देख ही रहे हैं, उनकी कप्तानी देख रहे हैं. मुझे लगता है जो धोनी को जमाने में देखते थे ना, लंबे लंबे बाल, लंबे लंबे शॉट्स, तो लग रहा है कि शायद इस बार ये देखने को मिलेगा. और एक कॉम्पिटिशन बट टफ होने वाला, दोनों टीमें बहुत ही अच्छी हैं, और इस मैच को लेके काफी इंटरेस्ट है लोगों में. और मैं भी इस बार इंतजार कर रहा हूँ कि धोनी कैसे बैटिंग करते हैं, विराट कोहली, फाफ डुप्लेसी खुद कितने, तो एक बैटिंग का जो वो है ना, एक मैक्सवेल, तो आज हमें लगता है कि काफी चेपौक के मैदान में ना, वैसे रिकॉर्ड तो बहुत खराब रहा है आरसीबी का. मैच में बाद में आऊंगा क्योंकि टॉस में भी 10 मिनट है, लेकिन I would come to Srini. What do you think? I have the same question for you as well about Virat Kohli. जितने बड़े प्लेयर हैं, क्या ये चीज चल रही होगी यार, नहीं अभी भी एक पॉइंट प्रूफ करना है, और he will just be like, my job is to go there and score runs for the side and I'll do that. That's it. वो किसको पॉइंट प्रूफ करेगा, मतलब क्या पॉइंट प्रूफ करेगा वो? ये मैं कहीं सुन रहा था कि बीसीसीआई में नॉट टेक हिम फॉर सम मीडिया रिपोर्ट सेड. अरे भाई, तो फिर लेके, तो देन दिस वेरी मीडिया रिपोर्ट, जो ये मीडिया रिपोर्ट लिख रहा है बंदा जो भी है, तुम क्वेश्चन बीसीसीआई को करो ना भाई, कि तुम 1 साल बाद उसको लेके क्यों आए फिर?
अगर तुमको उसको वर्ल्ड कप नहीं भेजना है तो why did you get him back? So, okay, I can understand on the 30th of March आप ये लिख रहे हो, या नहीं, सॉरी, टीम कब अनाउंस होने वाली? 1 मई को, May राइट? 1 1st. May 30th, May 1st. तो आप 30th अप्रैल को आप बोल रहे हो ओ विराट का चांस नहीं बनता है, तो मे बी देन फर्स्ट हाफ ऑफ द टूर्नामेंट देख के आपने एक अंदाजा लगाया। एक साल बाद एक बंदे को आप T20 फॉर्मेट में लाए हो, ऑब्वियसली वो बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस ही kind of had to take a break or whatever, he was like, he was distracted, he's human after all, boss. So वो वहां ब्रेक लेके गया, and then on what basis does some random media report write that he will not be considered? मतलब what is the science behind that? And one idiot writes and 10 other idiots like just hang on to it. I'm like, this is I'm sorry to say, but this has become a stupid bloody trend कि आदमी कुछ भी लिख रहा है। अरे भाई, लॉजिक, अगर तुमको लिखना ही है और तुमको अगर पता ही है कि विराट को नहीं ले जाने वाले, तो तुम चला बीसीसीआई को क्वेश्चन करो ना बॉस। तुम पूछो बीसीसीआई को कि तुम इसको एक साल बाद लेके आए हो, ऑन व्हाट बेसिस ये रिपोर्ट चल रही है बॉस? विराट जाएंगे या नहीं? अरे विराट क्यों नहीं जाएंगे? अगर जाने ही नहीं होता तो एक साल बाद लाना क्यों था? और अगर नहीं लेके जाना, पहले 1 महीना टेस्ट तो करो। तो ये these are debates which honestly don't have any they don't make any sense. After a point in time, it just defies common sense, defies cricketing logic, defies basic value this thing in sport. So I hope I hope sanity prevails. I mean, do whatever you want. At the end of the day, you can do whatever you want. Personally, do I agree with the decision of Virat Kohli going as part of the T20 World Cup? No, I don't. I don't. But then once you have brought him, you respect that. मतलब तुम यहाँ के भी नहीं हो और वहां के भी नहीं हो, तुम करना क्या चाहते हो मेरी समझ में नहीं आता। अभी उसको लाए हो, तो अभी तुम on what basis तुम बोल रहे हो कि नहीं जाएगा वो वर्ल्ड कप? So some things don't make sense to me. I mean, and I hope these things take a break. But having said that, I hope that answers your question. Yeah. But Taus bhai, what if, okay, let's just consider this media report, okay, just keep this media report in mind, ठीक है? आप बहुत एक साल के बाद, 14 महीने के बाद, इनफैक्ट इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, विराट कोहली को वापस लाते हैं, रोहित शर्मा को वापस लाते हैं, एंड विराट का फॉर्म पहले हाफ में नहीं आता, ही इज नॉट एबल टू स्कोर रन्स, लेट्स सपोज, फिर आप क्या करोगे? फिर भी हम ये बात करेंगे या बिकॉज या तो लाना ही नहीं था, या तो सीधा बोलना था कि बॉस आईपीएल खेल के जितने रन बनाओगे उसके हिसाब से पिक होगा. व्हाट विल द सिलेक्टर्स डू? नहीं, Srinivas thought or whatever he said about that the media report or why did Virat Kohli was called back makes sense यहाँ पर. अब आप वो परफॉर्म करे, आप एक टीचर का प्लेयर है जिसको आप ये सीजन के परफॉर्मेंस पे आप अगर कंसिडर कर रहे हो विराट कोहली को कि यार एक सीजन में ये 4 मैच में फेल हो गया और आप नहीं लेके जा रहे हो, बट उसी को ही आपने एक साल बाद वापस बुला लिया और अफगानिस्तान के सामने खिलाया, तो कोई तो लॉजिक बनता होगा ना. तो इनके बाद में लॉजिक एकदम फिट बैठ रहा है. दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हाउ इट शुड बी. 5 मैच नहीं खिला, अरे किसका ड्राई रन नहीं होता यार. आप चलो ठीक है, आपके जो मेन प्लेयर है उनका ड्राई रन हो गया तो क्या होगा? हार्दिक पांड्या, he should be the wise captain ideally. He's getting back. ऋषभ पंत या कोई भी प्लेयर का, अब उनका 5 मैच में ड्राई रन हुआ है और जो फिक्स होने वाला रिंकू सिंह, गॉड फॉरबिड रिंकू सिंह का, तो आप नहीं लेके जाओगे. And Virat Kohli, somebody who is like scored heavily in IPL, somebody who's done a lot of scored a lot of runs in international cricket, T20 का टॉप स्कोरर है. अच्छा, वही अगर नहीं लेके आते हैं तो समझ में आता है यार, एक साल आपने बिठाया, फिर आपको अफगानिस्तान नहीं खिलाया. नहीं चेहरे हम स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं रख रहे, ना आपको ना रोहित को, बट आप दोनों को बुला के फिर बाद में ऐसा बोलोगे कि यार, मतलब लॉजिक डिफाई करता. अदरवाइज अगर आप मेरिट पे जाओगे, फॉर्म पे जाओगे, तो फिर यार विराट का नहीं बनेगा. अगर आप लॉजिक पे जाओगे तो लॉजिक यही बनता है जो श्रीनिवास ने बोला. ओके कमिंग बैक टू दिस गेम, थोड़ा वर्ल्ड कप के बाद में, then I'll come to you. I'll just take a comment from Jamie because Jamie has to go. Just one comment from him. Okay, teams have started to warm up in the field. Jamie, quickly before you go, your predictions about this game and what should the winning captain do if he wins the toss? Normally, I mean, Chepauk it's such a stadium, that Chennai is going to come at you with
with three spinners. So if I'm RCB, I say, you know what, I'm gonna bat. I wouldn't want to bat second. If I'm Dhoni, we know that Dhoni likes to chase. So just given the fanfare, sorry, no, Dhoni anyway, but what I mean, Dhoni, Rituraj Gaikwad is just going for the toss. The decision to Dhoni ka hi hai. Chennai to win pretty easily because Okay. कहाँ करण शर्मा, मयंक डागर और ग्लेन मैक्सवेल, और कहाँ यार इनके स्पिनर्स देख लो यार. आज तो रचिन रविंद्रा का डेब्यू है. Really looking forward to see how he plays. So Chennai to win rather easily in the South Indian Derby. Okay. Thank you so much for your time, Jimmy. Bye bye. Yeah, Dharmendra, you were saying something. एक्चुअली मैं जो हमारा पहले डिबेट जो चला तो उससे बोलना चाह रहा था कि एक लाइन Yeah, बोलना yeah. चाह रहा था यार, आईपीएल टूर्नामेंट से ना विराट जैसे खिलाड़ी का सिलेक्शन नहीं होता किसी भी टीम के लिए, वर्ल्ड कप हो या किसी के लिए, ये आप यंगस्टर का सिलेक्शन होता. तो हम तो इस डिबेट में ही नहीं पढ़ना चाहिए. इसकी जो श्रेणी ने भी जो कहा कि इसका क्वालिफिकेशन अलग है कि ठीक है विराट को जाना नहीं जाना चाहिए, हो सकता है मैं पर्सनली या श्रेणी के आपकी पसंद हो कि जाना ना, अलग बात है. लेकिन जब टीम ने एक बार डिसाइड कर लिया है तो आईपीएल के फॉर्म के बेसिस पे विराट कोहली और रोहित शर्मा का सिलेक्शन वर्ल्ड कप के लिए नहीं होगा. सो ये ठीक है, ये खेलेंगे वो सारी चीजें, तो इस पे तो ज्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए. Okay. Coming to the game, Ataus bhai, क्या लगता है टॉस जीत के क्या करना चाहिए quickly because we are just a couple of minutes away from the toss. Yeah. I was just looking at the numbers. Yeah. And the whole scenario, like how what kind of wicket it's going to be, and I mean it's very difficult to predict wicket कैसा होना चाहिए, कैसा होता है. तो nature of the wicket, it's going to be slow turn और थोड़ा असिस्ट सीमर्स को मिलेगा क्योंकि लाइट्स के अंदर खेल रहे, ह्यूमिडिटी आ गई है तो स्विंग फैक्टर होगा शुरुआत में. तो आई बिलीव 150 160 175 मैक्सिमम. अच्छा 200 किसने मारा तो वो जीता. तो फॉर मी इट्स लाइक RCB will be under pressure because they have their team, girls team having won the WPL. तो वहां से होगी यहाँ पर अब बहुत ट्रेमेंडस प्रेशर होगा. बट देन आई मीन बेस्ट परफॉर्मेंस मुझे लगता है वहां से डिलीवर करेगी. So I think this will be RCB's game. Yeah. So I have an update here. It looks a great wicket, but there are few cracks, and the looseness around the cracks is worrying. It could lead to some inconsistent bounce, but it's generally looking good. The ball will turn, and there's some dampness, and the spinners could use that well. And you could be a factor. The captain winning the toss would want to bowl first. Shini, what are your thoughts? See, in a tournament like the IPL, okay, what exactly constitutes the term home advantage? There is nothing, there's no real home advantage. वैसे ही यार घर पे खेल रहे हो तो आपको ऐसी कोई कंडीशन पता है, टीम को नहीं पता होगा. आप 16 साल से people team has been coming in and so they know. Shini, you're not audible. Your voice is breaking. Shini, your voice is breaking. There's some connectivity issue. Can you hear me now? Yeah. No. Can you hear me now? Yeah. So I said in a tournament like IPL, home advantage really doesn't mean anything. What does it mean? Because as much as MS understands Chepauk, so does Virat understand Chepauk. As much as the international star understands Chepauk. The pitch again, if there's dew, then much depends on the toss, not exactly home advantage. Because then if you don't want to field second, then you really need to kind of win the toss and decide to field first. Yeah. Some connectivity issue with the Srini. Dharmen, I will like to take your views. As Srini rightly mentioned, Est cricket tournament में वो चीज एक अलग हम हटा के रख सकते हैं, होम एडवांटेज और वो सब. व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस, लाइक whoever wins the toss, what should they do? या जो भी देखिए वहां पर ड्यू फैक्टर भी रहेगा, जो भी टॉस जीतेगा ऑब्वियसली, क्योंकि आप जानते हैं कि स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट रहने वाला है. तो बॉलिंग ही कोई भी टॉस जीतेगा बॉलिंग ही पहले करना चाहेगा. और एक बात और है, देखिए क्या होता है कि जब आंकड़े अगर आप डेटा पे जाओगे तो अब चेपॉक में जो जीता है आरसीबी 2008 में, आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एक ही बार जीता चेपॉक में 2008. तो 8 आप लगा लो, 16 years बैक, आई थिंक द फर्स्ट आईपीएल ओनली.
सो देखिए ये तो सबको पता है कि चेपॉक में मतलब आज चेन्नई सुपर किंग्स वैसे भी जो है, लेकिन देखिए अब कुछ कह नहीं सकते। अभी क्या होता है, जिस तरह का आईपीएल का गेम होता है, ये मैं एग्री करता हूँ, जेमी बोल के गए कि बैंगलोर की बॉलिंग तो कमजोर है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उनके पास बैटिंग है। अगर आप ये 3 फाफ डुप्लेसी और विराट कोहली और अगर आपके मैक्सवेल अगर चल जाते, तीनों अगर चल गए ना, तो फिर वो कोई भी बॉलिंग अटैक रहे, वो किसी का भी रहे, तो काफी रन बन सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, थोड़ा तो उसको पलड़ा भारी कहेंगे कि इसी का पलड़ा भारी चेन्नई का ही है, लेकिन मैच इंटरेस्टिंग होने वाला है। इनफैक्ट मैं कहूंगा कि इसमें मैं सिर्फ कोहली 3 महीने के बाद वापसी कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि धोनी शायद 16 सालों के बाद वापस कर रहे हैं। बैट्समैन धोनी, जो हम धोनी को उसमें देखते थे, मैं उनको देख बड़ा एक्साइटेड हूँ। मतलब समाव मेरे को एक ऐसा लग रहा है कि धोनी कुछ और सोच कर यहाँ कप्तानी जिस तरह से उन्होंने दी है, एक दिन पहले उन्होंने दिया, तो वो बैटिंग इस बार लगता है कि बैटिंग को उन्होंने काफी वो लगा कि एंजॉय करेंगे या दूसरों को भी मौका देंगे। जिस धोनी की तलाश में हम पिछले कई सालों से उनके शॉट्स देखने के लिए सोचते कि धोनी, कैप्टन धोनी तो हमेशा रहे, लेकिन वो बैट्समैन धोनी पिछले कुछ सालों में दिखे नहीं। लास्ट ईयर भी हुआ था, इंजरी भी उनकी थी, तो उस तरह से बैटिंग कर नहीं पाया था। बहुत उन्होंने छोटे छोटे स्पेल में, मतलब कुछ लास्ट में आते थे 2-3 ओवर, ऐसी कुछ बैटिंग उनकी रही, ज्यादा लंबी रही नहीं। लेकिन लगता है कि इस बार हमें बैटिंग अच्छी देखने को मिलेगी। तो विराट कोहली 3 महीने के बाद वापस आ रहे हैं, धोनी की बैटिंग और तो तमाम, और एक और जो इंटरेस्टिंग शायद मिलेगा हमें, नवजोत सिंह सिद्धू की कमेंट्री देखने को मिलेगी, उनकी वापसी हो रही है कमेंट्री में। तो बहुत सारे कमबैक हैं, मतलब इस मैच से और इस आईपीएल में, ऐसा लग रहा है देखने में। Yeah. No, I'm just watching the visuals of MS Dhoni with his long hairs practicing out, his keeping, just doing his keeping drills, and Virat with his hand, just having a go at a ball. But Taus bhai, मैं जो यहाँ पे मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूँ, वो ये है कि विराट वर्सेस MS द बैटर्स, वो कितना एक्साइटिंग रहने वाला है, क्योंकि MS का कहीं ना कहीं ये भी है कि उन्होंने इतने टाइम में बैटिंग नहीं करी है। ही इज बैटेड डाउन द ऑर्डर। पिछले एडिशन में भी हमने देखा बहुत नीचे बैट करा है। क्या वो अपने को प्रमोट कर, क्या वो ऋतुराज को बोलेंगे कि वो उन्हें प्रमोट करें? एंड वो एक कंपटीशन, अनसेट कंपटीशन कैसा रहेगा? मतलब दैट वाज सुपर। ऋतुराज को बोलना पड़ेगा, भाई मुझे बैटिंग करने दे यार ऊपर, अगर मुझे करना। बट मुझे लगता नहीं यार, धोनी इज सो अनप्रेडिक्टेबल यार। ही माइट से कभी वो MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी हम लोग ने जब पिक्चर देखी थी, तो उसमें एक सीन ये था कि जब धोनी को बैटिंग चाहिए था, तो बोले कि हम ओपनिंग करने के लिए तैयार है। तो उनका शुरुआत का दिन था, तो वो उनको प्रूव करना था। यहाँ पर धोनी को क्या प्रूव करना है, यहाँ पर मैचेस जिताना है, और यहाँ पर ही इज नोन एज द फिनिशर। तो वो मुझे लगता नहीं वो रोल अपना चेंज करेंगे कि यार फिनिशर, क्योंकि उनको अपनी फिनिशिंग एबिलिटीज के अलावा किसी के ऊपर भरोसा नहीं। दैट इज व्हाट आई फील। बिकॉज आप देखिए 2011 का वर्ल्ड कप, इफ यू रिमेम्बर, युवराज सिंह को आपने डिमोट कर दिया था, नंबर 4 पर युवराज वाज द रेगुलर गाय, और धोनी लाइक सेंस प्रिवेल, क्योंकि ही थॉट कि यार मुरलीधरन है वहां पर, तो युवराज इज अ लेफ्ट हैंडर, he would struggle against Murli, a sharp turner on a turning Wankhede track. यहाँ पर then he thought of promoting himself, और देखा, I mean, rest is history. So Dhoni will not give away his finishing abilities. While Virat Kohli, again, he doesn't have to prove anything to anybody. He might be in the scheme of things, even if it's a dry run for him for the first 5 games till the selectors are announced, and he doesn't, but he wouldn't like to be questioned. He wouldn't like to, people to question his place in the team. तो यहाँ पर विराट कोहली भी अपनी एक आइडेंटिटी ढूंढेंगे ये टाइम के लिए, ये T20 वर्ल्ड कप में, कि यार मुझे ओपन करना है। अगर मैं वर्ल्ड कप में जाऊंगा, ये RCB तो है ही, उसको जिताना तो है ही, बट मिशन ये भी कि मुझे वर्ल्ड कप में जगह पानी हो, तो मुझे जस्टिफाई कैसे करनी पड़ेगी अपनी जगह। क्या मैं ओपन करूंगा, क्या मैं नंबर 3 करूंगा? दोनों बैटर्स का रोल डिफरेंट है कंप्लीटली। जिसका इनका है धोनी का फिनिशर का, इनका एक जबरदस्त स्टार्ट देने का। तो विराट कोहली विल बी अंडर प्रेशर, नॉट टू प्रूव बट टू एनीबॉडी, बट टू प्रूव हिमसेल्फ कि मैं अभी भी हूँ गेम में। अभी भी जो डाउटर्स हैं, डाउटिंग थॉमसेस हैं, जो मुझे बोल रहे, आई मीन ही केयर्स अ डैम बाय द वे, मतलब ही डजंट केयर अबाउट व्हाट पीपल से। मतलब जो मैंने देखा है 2008 से 2024 तक उस बंदे को अंडर 19 डी से, he doesn't care a hoot, but वो अपने आप को प्रूव करना चाहेगा कि भाई मैं नंबर 1 और 2 बैटिंग करूं, नंबर 3। अगर नंबर 1 और 2 में करूंगा तो मेरे चांसेस ज्यादा है
वहां पर, क्योंकि अगर वर्ल्ड कप में देखेंगे तो 2 यंगस्टर्स हैं जो बकरे बन सकते हैं, या तो यशस्वी या तो ऋतुराज गायकवाड़। तो रोहित तो अपना फिक्स रखेंगे, या तो नंबर 3 बैटिंग करे। तो विराट वुड बी लुकिंग टू स्कोर, टू गेट गुड स्टार्ट्स, और इसमें 4-5 मैचेस में आप देखोगे शायद 2-3 हाफ सेंचुरीज बनाने, एंड ही इज गोइंग टू प्ले अग्रेसिवली, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर ह्यूमन। अगर लोग आपके क्वेश्चन इस पे डाउट कर रहे हैं कि यार आप फास्ट या रन बॉल खेलते हो, तो आपका साइकोलॉजिकली माइंड में ये जरा सा पॉइंट तो रहेगा कि मुझे फास्ट खेलना है, मुझे अपने आप को तो प्रूव करना है, बट बाकी लोग भी एक डाउट क्लियर हो जाएगा कि मैं फिट हूँ और तैयार हूँ T20 वर्ल्ड कप के लिए। बट देन RCB requires him right now than anybody else. Okay, and Ashwini might not be able to join us again, but he sent his prediction for the game. He says CSK clearly favorites for the game. The only home advantage is home crowd supporting our team, and that support is with Dhoni. So Ashwini का ये prediction है इस match के लिए. And also there's an update for our viewers. Toss is at 7:40 and the match starts at 8. Okay, coming back to the game again, Dharmendra. I would like to ask you the same question. How excited would you be to watch two modern great batsmen? Not the players, not the captains, the two batters, the two chase masters. When, and we have seen this कि जब इन दो लोगों पे कोई baggage नहीं होता, they're in a different mode. We've seen this. They've done this for India. They've done this for their franchises. So what do you make of this? कि दोनों में से दोनों ही अपने कैप्टन्स को बोल रहे हैं कि बॉस आज चेस करना, because we want to get back into that group. हाँ, और एक सिमिलैरिटी भी है। अगर आप सौम्या देखिए ना, धोनी मोस्ट प्रोबेबली, देखिए होने के तो कुछ क्या होगा आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि धोनी एज ए प्लेयर हम आखिरी सीजन देख रहे हैं IPL में। अब जिस तरह से उन्होंने कैप्टनसी भी गायकवाड़ को दे दी, तो अगले सीजन में हो सकता है कि धोनी को हम कम से कम प्ले ग्राउंड में देखकर CSK के साथ जुड़े रहेंगे, वो मेंटोर के तौर पर रहे या कोई और भूमिका में रहे, वो अलग बात है। तो धोनी मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं, एक जो जिस तरह के, मुझे पता नहीं, मैं उनसे कोई बात नहीं की है, लेकिन जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज उनका मैं देख रहा हूँ प्रैक्टिस करते हुए, अभी भी जो ग्राउंड पे वो जिस तरह से कर रहे हैं, मुझे लगता है कि धोनी के अंदर का जो बैट्समैन है ना जाग गया है। देखिए लास्ट ईयर वो अपने इंजरी की वजह से परेशान थे, तो अपने जैसे तौश ने बोला कि वो फिनिशर की भूमिका में जरूर रहेंगे, लेकिन लास्ट ईयर आपको याद हो तो वो काफी बाद में पूरी तरह से फिट नहीं थे, तो वो उनकी ज्यादातर पारियां जो 3, 4, 5, 6 बॉल तक ही रह गई थी वो। लेकिन मुझे लगता है इस बार धोनी थोड़ी बैटिंग करना चाहेंगे, जहां पर अगर उनको 10 ओवर के बाद अगर बैटिंग करने का मौका मिलता, 10 आखिरी 10 ओवर के होंगे वहां पर होंगे, तो धोनी के अंदर का जो बैट्समैन है वो देखा। Just one thing. I can finally see ऋतुराज गायकवाड़ coming up. क्या इसको बबल रैप में बंद करके रख दिया था क्या अंदर? अब जाके इसका विजुअल दिखा है। ये देखिए, वैसे भी ना सौम्या, एक धोनी जैसे कैप्टन के बाद में अगर कुछ होना ना, तो एक बहुत बहुत बड़ा वो उनका वो होता है। इस एक प्रेशर भी होगा ऋतुराज के पास, सामने एक बहुत बड़ा प्रेशर होगा कि आप किससे कप्तानी ले रहे हो, धोनी से ले रहे हो कप्तानी ले रहे हो। लेकिन अदर साइड में उनके एक बहुत बड़ा उनके साथ एडवांटेज ये भी है कि वो धोनी आपके सामने बैठे हैं, आपको वो करने के लिए, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। तो दोनों चीजें ही हैं, दोनों मिक्स ऑफ वो चीजें होंगी। और ऋतुराज को इस मैच से पहले अगर किसी से बात करनी चाहिए थी तो वो MS नहीं थे, विराट कोहली थे, बिकॉज विराट कोहली डिड सेम, लाइक ही सक्सीडेड। MS no, he had to fill that big shoes. भाई क्या करूं मैं, इसे प्रेशर कैसे हैंडल करूं, पहले तो ये बता। बैटिंग तो मैं कर ही लूंगा। And with MS Dhoni being there on the field, और वो जितना एनिमेटेड रहते हैं ना बीच में से ही वो। So I remember this visual from one of the T20 World Cups, okay, or probably the Champions Trophy. There was this inside पीछे caught behind हुए, Virat was standing थोड़ा सा mid on किस से थोड़ा आगे. He looked at MS did this, like Virat was like this. और एक नहीं सौम्या, अगर हम थोड़ा रिवर्स करके चलें, आपको याद होगा जिस समय विराट को कप्तानी मिली थी, जब धोनी ने छोड़ दिया, वनडे T20 कप्तानी कर रहे थे, धोनी तो टेस्ट खेलना छोड़ चुके थे, तो वनडे T20 में अगर नॉर्मली किसी को भी हम यही कहते थे कि कप्तान विराट नाम के हैं, कप्तानी तो धोनी कर रहे हैं, फील्ड सेटिंग से लेकर सारे चीज होते थे, विराट बहुत ज्यादा डिपेंडेंट थे। और एक बहुत अच्छी बात है कि दोनों की रिलेशनशिप भी ऐसी रही है कि विराट ने हर चीज कॉम्प्लीमेंट किया, हमेशा कॉम्प्लीमेंट किया है। और मुझे लगता है किसी भी, देखिए कप्तान क्या होता है, कप्तान का टारगेट क्या होता है,
होता है, कप्तान होता है अपनी टीम को चाहता है कि जीत दिलाए। अगर कहीं पे किसी खिलाड़ी का इनपुट अगर उसके लिए बहुत अच्छा काम, उसको लगता है कि मुझसे बेहतर इनपुट दे सकता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें बुराई है। तो आप देखेंगे अभी ऋतुराज कप्तान जरूर होंगे, लेकिन धोनी का प्रेजेंस अपने आप में वो Okay, कप्तान ना रहे I have भी रहेगा। I have the toss update. The Royal Challengers Bengaluru have won the toss and they have opted to bat first. ये डिसीजन थोड़ा हैरान करने वाला है, जिस तरह से ड्यू फैक्टर भी अगर वहां पर रहेगा, पहले बैटिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं, लेकिन मे भी शायद वो उनको शायद अपने बॉलिंग अटैक पे भरोसा भी नहीं है जिस तरह का है ना। वो चाहते हैं पहले जितने ज्यादा, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि विराट, आप डुप्लेसी और मैक्सवेल जितना ज्यादा रन बना दो, सो दैट कि इसको बाकी चीजों का मेकअप कर लो आप। तो ये टारगेट इनका ये होगा, मैक्सिमम रन बनाने का। या ताउस भाई। नहीं, विराट का आप देखोगे, विराट कोहली वाज विराट कोहली इवन फ्रॉम द बिगिनिंग। ही वाज नेवर इन द ऑफ एनीबॉडी। वो अपने सचिन को आइडल मानते हैं, ठीक है, बट वो मतलब एक, हाँ, सचिन को एक रिस्पेक्ट देते, एक वो पूरा वो करते, बट देन विराट कोहली वाज ऑलवेज, मतलब वो अपने आप को अंदर से ही हमेशा ग्रेट समझते थे। वो किसी से ऐसा नहीं, एंड ही वाज लाइक दिल्ली बॉय बिंदास था, मतलब स्ट्रेट फ्रॉम द सिटी। और वो जो क्या बोलते हैं इसको, जो बेस्ट ऑफ द सिटीज कहते हैं, क्या एक टर्म है, पर्टिकुलर टर्म, while Ruturaj Gaikwad comes from Pune, a tier 2 city. He's shy. Yeah. He doesn't open up much. He isn't like in control of his situation right now. Maybe मतलब he is still under awe of a lot of youngsters. उसको बहुत सारी चीजें प्रूव करना है। विराट कोहली को जब मिली थी कप्तानी, तो उसने बहुत सारी चीजें प्रूव कर ली थी, एक स्टेचर अचीव कर लिया था। विराट कोहली तीसरे साल में ही, अगर आप देखेंगे फर्स्ट सीजन 2008 में जब उनको मिला आईपीएल में चांस, उसके बाद वो फटाफट इवॉल्व हुए, वो अपने आप को सेल्फ रियलाइजेशन आ गया। फिर उन्होंने अपने आप को गेम इंप्रूव किया, अपनी फिटनेस इंप्रूव किया, फिर वो एक लेवल पे आ गए, तो उनको कैप्टनसी मिली आरसीबी की। फिर उसके बाद कुछ साल बाद एमएस धोनी की सक्सेसर बन गए। सो विराट कोहली वाज ऑलवेज द थिंग। मेरी एक अंडर 19 प्लेयर से बात हो रही थी, और मैंने अभी रिसेंटली इंस्टा पे भी रिलीज किया कुछ वीडियोस अपने, कि विराट कोहली अंडर 19 क्रिकेटर, इंडिया अंडर 19, विराट कोहली, उसने बताया कि विराट कोहली वाज ऑलवेज विराट कोहली। वो अपने आप को हमेशा ऊपर ही समझता था बाकी सब प्लेयर्स, क्योंकि हम सब स्मॉल टाउन से आते थे, हमको ज्यादा पता नहीं था, बट विराट को सब कुछ, फ्रॉम ब्रांड्स टू क्रिकेट टू द कॉन्फिडेंस दैट ही हैड। तो विराट हैड डिफरेंट काइंड ऑफ ऑरा, डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड कंप्लीटली फ्रॉम व्हाट द स्मॉल टाउन गाइज हैव। क्योंकि आप नई नई चीजें देखते हैं, आप बड़े माहौल में आते हैं। हाँ, ऋतुराज गायकवाड़ 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो काफी एडजस्ट हो गए होंगे, बट being a Mumbaikar, being a Delhiite, being coming from big cities is different from coming from smaller cities. तो आपको वो एडजस्ट होने में ज्यादा हो रहा है। और खास करके अगर चेन्नई जैसी फैन फॉलोइंग है, ह्यूज है, धोनी जैसा ब्रांड है, तो यू विल बी अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर हमेशा, क्योंकि आपके दिमाग में घूमता रहेगा, यार मैं क्या डिलीवर करूं, मैं क्या मैं मैच कर पाऊंगा। तो मुझे लगता नहीं कि ऋतुराज को धोनी को मैच करना चाहिए, ऋतुराज को अपने बेस्ट देना चाहिए, अपने पोटेंशियल। And exactly what he has said, exactly what he has said on the toss, feel privileged, but I want to try and be in my shoes, not fill anybody's shoes. I got to know last week, but my bhai had hinted it last year. Everyone is experienced here. Sadly, we are missing on Conway and Patirana. We've got Rachin and Mitchell coming in though. 4 overseas, Mitchell, Rachin, Fizz and Thikshana. The mystery spinner Samir Rizvi is making his debut as well. So yeah, wow, big Samir Rizvi is getting his debut. देखिए, जो हम बात कर रहे थे कि धोनी ने लास्ट ईयर हिंट दे दिया था ऋतुराज गायकवाड़ को, अभी ये अभी उन्होंने बात कही है। ऑब्वियसली ये प्लान ऑफ स्कीम का पार्ट होता है, अचानक कप्तानी किसी को दी नहीं जाती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा चॉइस भी है। और यहाँ से ताउस में आपसे भी मेरे दिमाग में तो एक बात चल रही है कि धोनी का, अगर आपने देखा होगा, जब से उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ली है, या जो भी उनका रहा है, उनकी टीम सीएसके, धोनी इसलिए जाने जाते हैं कि बहुत सारे यंगस्टर के लिए उन्होंने टीम इंडिया में जगह बनी है सीएसके के थ्रू, जो धोनी के अंडर गाइडेंस में खेल कर गए हैं। वो दीपक चहर हो या बहुत सारे ऐसे प्लेयर जिनका नाम मेरे दिमाग में भी नहीं आएगा वो। और लेकिन इसके बाद बहुत सारे ऐसे प्लेयर भी जो सीनियर प्लेयर होते थे, जो इंडिया के प्लेयर होते थे, जब वो आउट ऑफ फॉर्म हो गए, टीम से बाहर हो गए, तो भी आए यहाँ पर। जैसे आशीष नेहरा, अगर आपको याद हो, 2016 वर्ल्ड कप से, T20 वर्ल्ड कप से पहले उन्होंने अच्छी बॉलिंग की सीएसके के लिए आईपीएल में, और उनको जगह वहां पे मिली। फिर वैसे ही आप
हरभजन सिंह भी बाद में आखिरी में उन्होंने काफी कोशिशें की थी, चेन्नई के साथ जुड़े थे। तो आपको ऐसा लगता है, मेरे को दिमाग में ऐसा लग रहा है कि एक टीम, ये जो ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ सीएसके कप्तान तो है अभी वो, लेकिन शायद आने वाले टाइम के लिए, जो कि अभी कप्तानी का डिबेट हमारा बहुत लंबा चलने वाला है टीम इंडिया को लेकर के कि रोहित के बाद कौन, और वो अभी भी डिबेट काफी वो है। तो क्या ये धोनी ऐसा तो नहीं है कि टीम इंडिया के नए कप्तान की भी वो यहाँ पर वो तैयारी, मतलब तैयार करेंगे यहाँ से सीएसके से? मैं ऋतुराज गायकवाड़ की बात कर रहा हूँ। उनके पास कंपटीशन बहुत है धर्मेंद्र जी, मुझे तो लगता है, क्योंकि यशस्वी भी है, रिंकू सिंह T20 के लिए मुझे लग रहा है, क्योंकि वो लीडर अपीयर होते हैं। बाकी तो है, बाकी डिबेट चलती रहेगी फ्यूचर में। फिलहाल तो एब्सोल्युटली मींस हमें आज सब Yeah. Sorry, I just missed out something. Yeah. नो दैट्स फाइन। आई मीन वही कैप्टनसी पे बात हो रही थी टीम इंडिया के सक्सेशन पे कि यार तैयार कर रहे हैं, तो लॉन्ग डिबेट एंड देयर आर लॉट ऑफ अदर कंटेंडर्स एज वेल। Yeah. True. अभी तक 11 हमारे पास नहीं है, बट या so Rachin Ravindra is making his debut, which is a good thing. You know, I have been very excited about, you know, watching this youngster. I've been a very big fan from his under 19 days, and और also समीर रिजवी। ताऊ भाई थोड़ा बात करना चाहेंगे रिजवी जी के बारे में? मतलब गुड टू सी Rizvi making a debut. Now Rizvi will speak about Samir Rizvi. Very nice. Nice combination. Good to see. I don't know him like personally, obviously ये यूपी के हैं, मेरठ के हैं, मेरठ से आते हैं। कहानी बड़ी इंस्पायरिंग है। इनके मामा इनके कोच हैं। So what we have been following, what Soumya might have read, his mama, and in fact his mama wanted to play cricket at a higher level, but he couldn't make it. He became a coach. So he adopted this guy Samir Rizvi कि भाई अच्छा वो आए थे छोटे गांव से, कहीं से आए थे और मेरठ में खेलने के लिए। तो he used to live with his brother-in-law जो समीर रिजवी के डैडी थे। अच्छा वो his father since he couldn't become, so he started an academy, so समीर रिजवी मामा। तो अब ये चाहते थे उनका भांजा क्रिकेटर बन जाए, कुछ लेवल पे खेले जाके, but his father, Samir's father wasn't allowing him to play. You know, क्यों तुम अपनी तरह बिगाड़ रहे हो इसको, कोचिंग एकेडमी चलाएगा क्या, ये वो ऐसी कहानियां पढ़ी है मैंने, और बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी इंस्पायरिंग है। तो ये जर्नी एक स्मॉल टाउन बॉय की यहाँ तक आना, और खास करके यूपी से, क्योंकि यूपी में आई कीप ऑन सेइंग दिस, यूपी में बहुत सारे क्रिकेटर्स, इतना बड़ा स्टेट है, 20 करोड़ की पॉपुलेशन है। अब देखेंगे चाहे शमी हो या बहुत सारे प्लेयर्स जो बाहर जाके, यशस्वी जायसवाल हो, सरफराज हो या उनके डैडी, सब यूपी, बॉम्बे या दिल्ली जाके खेलते या बंगाल जाके खेलते। यूपी में कंपटीशन बहुत है, बट टूर्नामेंट्स नहीं है, प्लेटफॉर्म नहीं है, इतना बड़ा स्टेट है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब जगह मौजूद नहीं है रूरल एरियाज में, डिस्पाइट हैविंग मैसिव टैलेंट। रूरल एरियाज में जाके देखो, जबरदस्त एक से एक बढ़कर प्लेयर है, बट वो छाटना, वो अपॉर्चुनिटी बहुत कम है। सो इट्स अ ग्रेट थिंग टू सी अ यूपी गाय coming out from a small town again and shining, just like how Bihar's Akashdeep and Mahendra Singh Dhoni from Jharkhand. So I had a chat with Samir Rizvi's coach. मैं वेट कर रहा था आपकी बात खत्म होने का। तनकीब सर, you know, as you just mentioned, उनके अंकल मामा लगते हैं, and he is his coach. Categorically, one thing that he repeatedly told me was, बहुत डाउन टू अर्थ लड़का है, बहुत शरीफ है और बहुत टैलेंटेड है और बहुत मेहनत करता है। मेरे उस 10 मिनट के कॉन्वर्सेशन में मैंने ये चीज़ शायद 5 बार सुनी होगी, एंड दैट शोज, यू नो, हाउ द बिग मनी कमिंग इन इज नॉट इफेक्टिंग दिस बॉय, यू नो, बिकॉज हिज डैड वाज अ प्रॉपर्टी डीलर, बट बिकॉज ऑफ हेल्थ इश्यूज वो बिजनेस नहीं है। मदर इज अ होम मेकर, भाई या बहन है, आई गेस, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। सो कहीं ना कहीं वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बट द बिग मनी दैट इज कमिंग इन फ्रॉम द IPL, you know, that is not affecting him, that, and his priority is to play for India. You know, I just love it when the coaches tell you कि boss, कोई फर्क नहीं पड़ता कितना पैसा आ रहा है, लास्ट टारगेट जो है वो इंडिया का जर्सी है। एब्सोल्युटली नहीं, अगर आप डाउन टू अर्थ नहीं रहोगे ना तो आप सीखोगे नहीं, आप एरोगेंट बन जाओगे। अगर तो आप बेसिक लेवल पे जहाँ पर आपकी गलतियां हो रही हो, जो बड़े आके बता रहे हो कि आप कहाँ गलत हो रहे हो, तो आप वो एक्सेप्ट नहीं करोगे। तो अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया, अगर आपने वर्क नहीं किया गेम पे, तो आप गए, फिर आप वहीं तक ही रह जाओगे। 1-2 सीजन IPL के घर चले जाओगे। Yeah, I'll just check out the playing 11 was.
वो So मतलब the प्लेइंग 11 को देखकर तो गजब की टीम है, मतलब ऐसा दिख रहा है कि अगर चेन्नई की टीम को देखें for Royal Challengers Bengaluru, the team is Faf, Virat, Rajat Patidar, Glenn Maxwell, Cameron Green, Dinesh Karthik, Anuj Rawat. Both of them are playing. Okay, Karan Sharma, Alzari Joseph, Mayank Dagar, Mohammad Siraj. So 1, 4, and 5. Okay, so how are we gonna fit these all the 5 overseas players, right? If I'm not mistaken, how come they have 5 overseas players? What 5? Overseas. So Faf, Maxwell, Green. नहीं 4 is fine, 4 is 4, 4 है, 4, 4, 4, 4 है, 4, 4 है। 4, 4, आपने 4, भी 4, दिनेश 4. कार्तिक को आपने काउंट कर लिया उसमें। ठीक है ये दिनेश कार्तिक नो आई मगर मिस्ड मुझे दैट या समझ में नहीं आ रहा है, मयांक डागर एक लेफ्ट आर्म स्पिनर और कर्ण शर्मा एक लेफ्ट आर्म और एक लेग स्पिनर है। एक लेग स्पिनर या तो दो टू स्पिनर्स आर इनफ। अच्छा, मैक्सवेल आल्सो बॉल्स। मैक्सवेल आल्सो बॉल्स ना या मैक्सवेल, So they have a very good back. कैमरन ग्रीन। कैमरन ने तो मीडियम पेसर हो गया ना। हाँ मतलब बट चेन्नई में अगर ड्यू बॉलिंग फैक्टर है तो फिर आपको पेसर्स ही ज्यादा काम आएंगे, क्योंकि स्पिनर्स का ग्रिप ही नहीं मिलेगी बहुत आपको, तो छूटेगा आप यार, क्या करोगे? बहुत लेफ्ट आर्म छूटेगा स्पिनर बहुत है जो ड्रिफ्ट पे और आर्म बॉल पे ही काम करेंगे, बाकी लेग स्पिनर्स का भी ज्यादा रोल। या but I'm not really sure, about Alzari Joseph. He's a good bowler, no doubt about that. But ahead of someone like Topley, that's a bit surprising for me. But okay, yeah. And also for CSK, the playing eleven for CSK is Ruturaj Gaikwad, captain Rachin Ravindra, Ajinkya Rahane, Darren Mitchell, Ravindra Jadeja, Sameer Rizvi, MSD, wicketkeeper Deepak Chahar, he's back, Manish Tikshana, Mustafizur Rahman, and Tushar Deshpande. So this is the 11 for इंटरेस्टिंग लाइनअप। वो दोनों अच्छा interesting. दिख रहा है। मैंने लुक एट दैट, ऋतुराज गायकवाड़, रविंद्र, अ गुड स्टार्ट। आई मीन हमारी बात उसी दिन ही हो रही थी कहाँ बिठाएंगे। सौम्या, इफ यू रिमेंबर, कहाँ बिठाएंगे रचिन रविंद्रा को, तो इन्होंने मोइन अली को नहीं खिलाया। नहीं खिलाया, नंबर, exactly. हाँ, so that was something like, But they have a Ravindra Jadeja in left arm spinner Ravindra and Jadeja, Rachin नहीं, Ravindra in left arm. कॉनवे को उन्होंने बाहर बेंच कर दिया। ये Conway is बड़ा वो था। Conway is already out. He's not available for few games because of ओके injury. सॉरी, आई हैड नो आइडिया अबाउट। ठीक, अदरवाइज No. कॉनवे को बाहर तो बिठाना तो इट्स लाइक। देखिए, तो टर्निंग ट्रैक मतलब यहाँ पर स्पिन फ्रेंडली विकेट होने के बावजूद यहाँ पर 4 फास्ट बॉलर्स के साथ जा रहे हैं। Tushar Deshpande, Mustafizur, Deepak Chahar, Dikshan- and also Daryl Dikshan Mitchell is can in- also chip in. Daryl Mitchell in. can also chip in. Medium pacer. कितना ड्यू इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इससे पता चलता है एग्जैक्टली कि क्या कितना स्पिनर्स को ज्यादा हेल्प नहीं रहेगा थ्रू आउट द आईपीएल। ओनली द लेग स्पिनर्स एंड द लेफ्ट आर्म स्पिनर्स आर गोइंग टू हैव सम से। लेफ्ट आर्म स्पिनर्स बिकॉज ऑफ द ड्रिफ्ट एंड द एंगल दे ब्रिंग इन, लेग स्पिनर्स दे कैन टर्न द बॉल इवन ऑन द ये बिकॉज यू रिक्वायर स्ट्रांग रिस्ट। अजिंक्य रहाणे के लिए भी ये टूर्नामेंट बड़ा वो रहने वाला है, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्हें बड़े रन अच्छे नहीं उनके बल्ले से निकले हैं, तो उनके लिए बड़ा चैलेंजिंग है इस बार का टाइम। Yeah. जाते जाते फाइनल में एक सेकंड इनिंग में कुछ किया था उन्होंने। हाँ वो ठीक है, बट दैट वाज वन ऑफ इनिंग, मतलब अदरवाइज No, but that was no, Dharmin, but that was a very important knock. Not in his perspective. In the वो जो टीम जो जहाँ से जीता है ना, इस जिंकिया का नॉक बहुत important था वो। नहीं मैं नहीं कह रहा, दैट इज फाइन सौम्या, लेकिन Yeah. एक ओवरऑल जो उनका फॉर्म रहा है वो ज्यादा अच्छा हाँ, नहीं रहा ओवरऑल है। तो खराब रहा है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि ही लुक गुड इन दैट इनिंग्स इन कंपैरिजन टू द होल टूर्नामेंट। हाँ मे बी ही कैरी फॉरवर्ड। इस पे मेरी और ताउस भाई की काफी लंबी एक चर्चा बात भी ये हुई है, थी। एक बात ये है कि व्हाइट बॉल और रेड बॉल में डिफरेंस काफी Difference इसलिए भी है है। कि रेड बॉल स्विंग्स अ लॉट, बहुत ज्यादा हरकत करता है कंपेयर टू व्हाइट बॉल व्हिच इज ऑन अ लाइटर साइड बट अ बिगर साइड, और रेड बॉल इज अ बिट हेवियर, तो उसका मूवमेंट ज्यादा, शाइन ज्यादा और दिन ज्यादा वो होता है। It's fun to bat with and easy to bat against white ball, which is what Ajinkya Rahane would be looking, because throughout the season he may not be producing runs, but he was looking good once again. Like going back to the whole thing, यार, he was still looking good. But One thing, white ball से खेलेंगे तो जबरदस्त रहेगा। अजिंक्य ठीक है। One thing more,
Samir Rizvi being in that middle order adds a lot of lot of fuel to it, because MS will play freely. Deepak Chahar can come in and chip in with some. You have Ravindra Jadeja there, and Samir Rizvi has that ability to hit big ones. So that is a very very good. I mean, for me, CSK's playing 11 is much balanced than, बैलेंस। of course, RCB being RCB. हमारे बैलेंस टीम, बिल्कुल और बैलेंस हमारे टीम। प्रोड्यूसर को एक वो देना चाहिए क्रेडिट कि उन्होंने बोला था मोइन अली नहीं खेलेंगे। बंसल जी का ये है कि मैंने कहा था ना मोइन अली की जगह नहीं रहेगी। बिकॉज आपको अगर डैरिल मिचेल खिलाना है तो आपको मोइन अली बिठाना पड़ेगा, क्योंकि रचिन इज ऑल्सो ओपनर, नो, उसको आप नहीं नीचे बिठा सकते। आई लाइक यू कुड हैव गॉन इन विद अजिंक्य रहाणे ओपनिंग द इनिंग्स, बट तो मेरा थोड़ा दोनों सा। से सवाल है आप लोगों से कि ये टीम किसने बनाई होगी? धोनी ने कि ऋतुराज गायकवाड़ ने? स्टीफन फ्लेमिंग ने। रमेश जी, नहीं, Safe ऑब्वियसली खेल। धोनी, ऑब्वियसली धोनी। अरे ये फिर चलिए, गलत, फिर कैप्टन क्यों बनाया? फिर कैप्टन क्यों बनाया यार? ये तो गलत ठीक बात है, है। नहीं नहीं ठीक है। ये सवाल आप विराट कोहली से कभी करना, टॉस कभी नहीं, मिले ना। ये वैसे बनाया होगा, ये वैसे होगा जैसे कुलदीप को बोला था ना कि हैट्रिक बॉल पे क्या डालूं, कुछ भी डाल दे, वैसे ही बोला होगा कि कोई बना दे यार, कह रहा ही तो मैं बनानी है, हूँ, बना ले। धोनी बोला मैं हूँ, बाद में तुम देख ले जो भी करना है। वेल, बट चलिए, दैट इज समथिंग इंटरेस्टिंग कि यार किसने बनाई होगी। ये पूछना चाहिए था जो बंदा इस पे था कि मतलब ऑल्दो कंट्रोवर्शियल हो जाता, थोड़ा एबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क आ जाता कि भाई, बट थोड़ा मजेदार हो जाता, एक इंसाइटफुल हो जाता। चलिए, the action is starting now, so let's go and watch the game and we'll connect after the match again. Thank you so much, both of you, for joining me in this session. Lovely chatting with you. Thank you. Bye bye. Good night. Shabba khair. थैंक यू। फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।